Good morning, students. In the previous session, we have learned about parasitic nutrition. Let's move on to the next nutrition, which is called as saprophytic nutrition. तो चलिए देखते हैं saprophytic nutrition क्या होता है. It is the nutrition in which organism, that is plant, obtain their food from dead and decaying plants and animal bodies. जो कि हमारा प्लांट होता है लिविंग, वो खाना लेता है किससे? डेड एंड डिकेइंग प्लांट से और एनिमल बॉडीज से. वो इनके ऊपर ग्रो करता है और इनसे फूड एब्जॉर्ब करता है. वो खुद नहीं बना सकता खाना. अब देखते हैं सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया. आई एम रिपीटिंग अगेन. इट इज द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज. नाउ लेट्स सी व्हाट इज सैप्रोफाइट्स. हमने पिछला पढ़ा था पैरासिटिक न्यूट्रिशन में देर आर पैरासाइट्स. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में देर आर सैप्रोफाइट्स. व्हाट आर दीज? These are the plants which obtain these foods from dead and decaying plants and animals are called saprophytes. तो ये वही प्लांट है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो कि अपना खाना डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल बॉडीज से एब्जॉर्ब करते हैं. सैप्रोफाइट्स, दीज आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. अब सैप्रोफाइट्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. सैप्रो मीन्स rotten and phyte means plants. So these are the saprophytes are the plants which derive nutrition and food from rotten plants or animals. अब इस कैटेगरी में दो आते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया. These are the saprophytes which shows us saprophytic type of nutrition. आइए अब हम देखते हैं कि ये जो फंजाई और बैक्टीरिया हैं ये डेड प्लांट्स और एनिमल की बॉडीज से खाना एब्जॉर्ब कैसे करते हैं. नाउ saprophytic organism that are saprophytes, that is fungi and bacteria, release digestive enzymes which convert complex molecules such as sugar in simple form such as glucose. तो ये शुगर कहां प्रेजेंट होगी? ये शुगर प्रेजेंट होगी डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज में. तो ये उसको फंजाई और बैक्टीरिया एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं जो कि शुगर डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज के ऊपर एक्ट करता है और उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एंड इट इज देन एब्जॉर्ब्ड बाय द सैप्रोफिटिक प्लांट दैट इज फंजाई एंड बैक्टीरिया. Now starting with fungi. Fungi can be of two types. It is mold and mushroom. As you know that fungus can be unicellular also and multicellular. Here mold and mushroom are multicellular filamentous fungi. तो ये हमारे saprophytes हुए. Fungi which is mold. अब वो grow किस में करते हैं? They have to grow. They are saprophytes, so they will grow on dead things. So what are this dead thing on which it grows? Mold growing on stale bread. हमारे जो ब्रेड के पीसेज होते हैं उसके ऊपर अक्सर हम देखते हैं कि ब्रेड को अगर मॉइस्ट उसमें रख देते हैं तो उसमें फंगस लग जाता है. वाइट से कुछ जाले सी चीज लग जाती है. वो और कुछ नहीं, वो मोल्ड है और वो एक सैप्रोफाइट है जो कि अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है किससे? ब्रेड के उस टुकड़े के ऊपर से. द अदर वन इज मशरूम ग्रोइंग ऑन ह्यूमस और रॉटिंग वुड. मतलब कि वुड का एक टुकड़ा जो कि सड़ रहा है उस पे ग्रो करता है मशरूम. लेट्स सी द पिक्चर ऑफ दीज टू. सो लेट्स सी हियर इट इज अ पीस ऑफ ब्रेड एंड ओवर इट दिस मोल्ड इज ग्रोइंग. इट इज रिलीजिंग डाइजेस्टिव जूस, converting sugar into starch and then absorbing the nutrition from the piece of bread. The second one we have learnt about the mushrooms. See here, these are the non-green mushrooms which is growing on dead parts and obtaining
nourishment. Let's see another picture of mushroom. See here, it is a dead wood, dead trunk. On it the mushroom is growing, which is non-green, and obtaining its nourishment from the dead parts of the plant, that is the trunk. The second organism is bacteria. Bacteria grows on, it also grows on dead and decaying parts. Bacteria grows on dead and decaying wood, dead animal bodies, and obtain their nourishment from there. So students, hope you have understood saprophytic nutrition, and previously we have done parasitic nutrition. Let's see the difference between parasitic and saprophytic nutrition. Parasitic nutrition. As you all know, we have also taken up this lesson. In this, the parasite depends on the food on living plants and animals. पैरासाइट जो होता है लिविंग फूड के लिए लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर निर्भर रहता है, उनसे एब्जॉर्ब करता है. वेयरएज इन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन सैप्रोफाइट्स डिपेंड्स ऑन फूड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है. तो ये लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होता है फूड के लिए, और सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए. The second difference is the parasites harms the host. Living host है, खाना बना रहा है और उससे ये खाना पैरासाइट अपने लिए एब्जॉर्ब करते हैं. तो खाना होस्ट के लिए कम पड़ सकता है और पड़ता भी है, तो इसलिए पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट को हार्म करते हैं, डिस्ट्रॉय, कभी कभी वो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, डेथ हो जाती है होस्ट की. बट ऑन द अदर हैंड सैप्रोफाइट्स डू नॉट हार्म, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. क्यों? क्योंकि वो एक डेड प्लांट और एनिमल्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो उनको वो क्या नुकसान पहुंचाएंगे जब वो खुद ही डेड हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू थर्ड डिफरेंस. पैरासाइट्स एब्जॉर्ब एसिमिलेटेड फूड फ्रॉम द होस्ट. बना हुआ खाना एब्जॉर्ब करते हैं पैरासाइट, किससे? होस्ट से. सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइट्स फर्स्ट कन्वर्ट्स complex food molecules into simpler ones and then it absorbs the food. ये पहले ये बना हुआ खाना एब्जॉर्ब करते हैं, बट सैप्रोफिटिक होते हैं. दे फर्स्ट कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस एंड देन दे एब्जॉर्ब द फूड. Hope you have understood this type of nutrition, saprophytic nutrition. It is very simple and easy. Just you have to revise the notes that we are sharing here in the online session. Thank you.